Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's class. In this class, we are going to study chapter number 3, Issue of Shares. Now, everyone knows the concept of shares, debentures, yes, and again shares are divided into how many parts? The shares are divided into two parts. Yes, everyone knows it. How many parts are there for the shares? The shares are divided into two parts. One is your equity share and second is your preference shares. Those who are purchasing equity shareholders, those who are purchasing equity shares, you can call it as your equity shareholders, and they are the real owners of the organization. Next is those who are purchasing preference shares, you can call it as a preference shareholders, and these preference shareholders are the co-owners of the organization. Now we will see the diagram which is given in your textbook. Without wasting much of time, we will see the classification of shares. Now the share capital is classified into authorized, nominal, or the registered capital. Again is divided into issued and unissued capital. Next is issued capital is divided into subscribed and unsubscribed capital. Subscribed capital is divided into three parts, that is called up capital, your uncalled up capital, and reserve capital. Next is called up capital is divided into again two parts, that is paid up capital and your calls in areas. Now we will see what is the meaning of authorized, issued, unsubscribed. So this is very simple, but for that your best attention is required. So I request you all, without looking here and there, pay attention for the next concept. Now here I mention some few difficult words related with this page number 39, 40, 41 and 42. Now we'll see what they mean by or the meaning of your difficult words. One is your authorized capital. Authorized capital means what? It's getting the approval. Now why this is given, which kind of approval, we will see one by one in the next slides. Next is register capital. The register capital which is recorded on an official list, which is register. Subscribe capital, the arranged to receive something, it is called as a subscribe capital. The calls are the demand made by the company in the form of shares. Next is calls in arrears. The shareholders may not pay the amount called on a particular date of the company. It's called calls in arrears. Now, why this is given? You are getting might confused. But I request you all, instead of observing the site, please write down these difficult words in your textbook, underline in textbook and write down the meaning, or write it in your notebooks. Next is important concept is forfeiture of a shares. The forfeiture of a shares refers to the cancellation of shares. Now why this is given? So we will see, because all these concepts are interrelated. Sometimes shareholders may be unable to pay the money due to allotment or the calls on a due date. जब कंपनी कॉल करती है अमाउंट, तब subscribers, ये हमारे shareholders, future shareholders, they won't be able to pay the money. So whatever money is paid by them, so that can be taken by the company, but the membership is cancelled, the shares are cancelled, and this process you can call it as your forfeiting of your shares. Now we will begin with one diagram, and just please pay your attention very carefully what this diagram says about. Now in your textbook there are very big numbers are given. To make it simple, I mention some very simple in your own language. Now here you are having 100 shares and the face value of each share is 10. So what will be the total capital you have now? Yes, your answer is right, that is 1000 rupees.
So this 1000 rupees, ये 1000 जो rupees है उसको आप क्या कहोगे? With this 1000 rupees you can call it as your authorized capital. यहाँ तक समझ में आया कि ऑथराइज कैपिटल किसको कहोगे? पूरा कैपिटल जो कंपनी के लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमें फ्यूचर प्लान्स के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, एक्सपांशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कंपनी के लिए इतना सारा कैपिटल तो हमें लगने वाला है. द एग्जाम्पल इज फॉर 1000 रुपीज. नाउ ये कंपनी क्या करती है कि एट ए टाइम तो कंपनी ऐसे नहीं करेगी कि एक्सपांशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, नहीं. तो कंपनी क्या करती है? थोड़ा थोड़ा अमाउंट मार्केट में कैपिटल का लाती है. सो व्हाट दैट थोड़ा थोड़ा अमाउंट इज कॉल्ड? That amount is called as issued capital. Now here company is having 100 shares. तो 100 shares में से कंपनी ने अभी issued कितने किए हैं जनरल पब्लिक के लिए? 40 shares. यहाँ तक समझ में आया कि ये इशू किए हैं. Now इशू करने के बाद next concept is related with the issued capital is subscribed capital. Subscribe यानी क्या? हम लोग किसी को हम लोग कुछ सब्सक्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चैनल देखना है, टीवी चैनल्स या कुछ और भी कुछ चैनल्स है, तो आप क्या करते हो? आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब करते हो. तो वो सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करते हो? रिक्विजिट फीस पे करते हो. सो दिस सब्सक्राइब कैपिटल इज रिलेटेड विथ योर इशूड कैपिटल. अभी जो इशू किया है उसमें से भी सब्सक्राइब कैपिटल हमें कितना मिला है? कितना में दिखाया है? 300. यानी हमने पहले इशूड में 40 शेयर्स दिखाए थे. अभी सब्सक्राइब कितने हुए 40 शेयर्स में भी? 30. यानी 30 लोगों ने ही सब्सक्राइब किए हैं. सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 10 शेयर्स? यू कैन कॉल इट एज अ अनसब्सक्राइब कैपिटल. नाउ सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी क्या करती है? अभी आपने सब्सक्राइब किया तो कंपनी वॉट एवर द अमाउंट यू हैव, तो वो मनी क्या करती है? आपका कॉल्ड आउट करती है. और हमने देखा है कि सब्सक्राइब कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप एंड रिजर्व कैपिटल. तो कंपनी क्या करती है कि पहले 300 में से सपोज कंपनी को 30 शेयर्स में से कंपनी 30 शेयर्स में से ईच शेयर फॉर 10 रुपीज, तो कंपनी क्या करती है? ये 10 को भी बांट देती है. ये फेस वैल्यू को होती है वो डिवाइड करते हैं. तो मैंने यहाँ पे मेरे एग्जांपल में ₹10 को कैसे डिवाइड किया है? 10 को मैंने 5 और 5 के प्रोपोर्शन में डिवाइड किया. 2 ही मैंने दिखाए हैं कॉल्स. तो मैंने 5 रुपीज क्या किए हैं? पहले मैंने डिमांड किए हैं. लेकिन ये जो 5 है तो मैंने पहले डिमांड करने के बाद में क्या हुआ? ये दिस अमाउंट यू कैन कॉल्ड इट एज अ कॉल्ड अप. अभी ये सब्सक्राइब कैपिटल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप एंड रिजर्व. कंपनी क्या करती है? उसमें से भी जो अमाउंट है ये 300 रुपीज जो है इसको भी कुछ ना कुछ पोर्शन जो होता है रिजर्व करके रखते हैं. बिकॉज बिजनेस इज हैविंग अन इनएविटेबल रिस्क. हमें पता होता है कि कभी अप कभी डाउन ऐसे बिजनेस में चलते ही रहता है. सो फॉर दैट पर्पज द सब्सक्राइब कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. तो क्या करती है? पहले कंपनी कॉल्ड अप करती है. तो कॉल्ड अप में से भी कॉल्ड अप करने के लिए कंपनी ने 10 रुपीज को डिवाइड किया फेस वैल्यू को. तो 10 में से जितने आपके शेयर सब्सक्राइब किए हैं तो उसको इंटू करना है. यानी मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 30 इंटू 5 करूंगी. यानी मेरा अमाउंट कितना हुआ? कॉल्ड अप मैंने जनरल पब्लिक से कितने रुपीज मांगे हैं? 150 रुपीज. अभी रिमेनिंग कितने हैं? 5. तो 5 को भी मैं डिवाइड करूंगी. 5 में से मैं कुछ पोर्शन मेरे रिजर्व्स में रखूंगी. मैंने यहाँ पे सोचा कि रिजर्व के लिए मैं सिर्फ 1 रुपीज रखूं. तो रिमेनिंग अनकॉल्ड मेरे कितने हुए? 5 में से 4 रुपीज. Got the difference? And from that called up, company is what going to do? Company is going to get paid up. यानी actually जो लोग हैं सब्सक्राइबर्स वो कितने पे कर रहे हैं? तो पे कितने कर रहे हैं हमारे का सब्सक्राइबर्स? हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं यहाँ पे 30 लोगों ने ही
ये किए हैं, हमारे पेड किए हैं, कॉल्ड अप किए हैं, तो उसके बाद क्या करती है कंपनी, जो हमारे पेड अप कैपिटल है, तो हमें वो सिर्फ 20 शेयर्स के लिए मिले हैं, यानी जो रिमेनिंग जो 10 शेयर्स है वो हमारे कहाँ पे जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि इतने बार पैसा मांगा लेकिन ये 10 शेयर होल्डर्स है वो हमें पैसे ही नहीं दे रहे, तो हमारा पेड अप कैपिटल कितना हुआ, 20 into 5, that is 100 rupees. Now I know कि जब आप कंसेप्ट जो आप थ्योरेटिकली स्लाइड्स में पढ़ोगे देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. इसके लिए पहले मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है. नाउ वी विल सी द स्लाइड्स वन बाय वन. नाउ वी विल सी ऑथराइज्ड नॉमिनल और द रजिस्टर कैपिटल. Now all of you studied there are some important documents, and what are that two important documents required for the company? One is your memorandum of association and second is your articles of association. So memorandum of association consists 6 different clauses. तो उसमें से हमारा एक क्लॉज होता है, you can call it as a capital clause. यानी क्या, MOA तो चाहिए, MOA is an important document. तो MOA में जो कैपिटल लिखा है वो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टर कैपिटल हो जाएगा. यस, यहाँ तक समझ में आया. सो द मैक्सिमम कैपिटल authorized by MOA, that means memorandum of association, that the company can raise by issuing shares. यानी ऑथोराइज का जो कैपिटल होता है ये एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक जैसा कंटेनर है, तो ये हमारा ऑथराइज कैपिटल है. तो उसमें से कंपनी पूरा लेगी क्या, मैंने एट द बिगिनिंग ही आपको बताया था, कंपनी एट द बिगिनिंग पूरा कैपिटल नहीं लेती. यस, तो हमारा ये 100 से कंपनी क्या करती है, थोड़ा 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 कैपिटल सबको, जनरल पब्लिक को इशू करते रहती है. सो द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड बाय MOA, यू कैन कॉल इट एज योर, by issuing shares, it's called as the authorized capital. So it is called as a registered capital as it is mentioned in the capital clause, because हमारे मेमोरेंडम में 6 clauses है, उसमें से हमारा एक clause है capital clause. तो जो capital clause में हमारा capital लिखा है वो हमारा रजिस्टर होते रहता है. तो ये होता है ROC के पास. तो यहाँ पे जो रजिस्टर हुआ होता है कैपिटल, तो इसके लिए ऑथराइज कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कैपिटल ऑल्सो. इट इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी एट द प्रेजेंट इन अ फ्यूचर. ये कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते, पूरे 100%, हमारे एग्जाम्पल में 1000 रुपीज था, कैसे कैलकुलेट करते कि कंपनी सोचती है कि हम लोग कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, उसी हिसाब से इसका क्या होता है, कैलकुलेशन होता है. And another name for this capital is nominal capital. A company never issued the entire authorized capital. Remember this concept कि कंपनी एट अ टाइम पूरे आपके जो 1000 रुपीज है वो मार्केट में इशू नहीं करती. यहाँ तक सबको समझ में आया? इज दैट एनी डाउट? तो यहाँ पे पिक्चर और पहले वाला डायग्राम अच्छे से याद रखो क्योंकि हमें ये नेक्स्ट स्लाइड्स में भी यूज होने वाला है. गॉट इट एवरीवन? So everyone understand the concept of authorized capital or nominal or the register capital. You can refer your textbook example also. Now we will begin next new important concept related with your classification of share capital, that is issued and unissued capital. Now what do you mean by issued and unissued capital? Let's see. It is part of authorized capital which is offered by prospective investors for subscription. Now this is all for your shareholders. ये हम लोग जो कैपिटल इशू करते हैं ये सब हमारे शेयर होल्डर्स को होता है. यस, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव यानी इन फ्यूचर वाली जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनके लिए. तो हमारे ऑथराइज कैपिटल में से
सम पार्ट, यानी हमारे अभी एग्जाम्पल में, स्लाइड वाले एग्जाम्पल में हमने देखा है कि हमारे पास 100 शेयर्स थे. यू कैन कॉल इट एज अ ऑथराइज कैपिटल. सो 100 में 100 शेयर्स फॉर 10 रुपीज ईच, यानी ये हो गया हमारा ऑथराइज कैपिटल. उसमें से हमने इशू कितने किए हैं? 40 शेयर्स. यस, तो 40 शेयर्स इंटू 10 यानी 1000 रुपीज में से हमें कितने मिलेंगे? 400 rupees. Yes, so this you can call it as your issued capital. It is the shares that the company is offering to the public to buy. तो ये जो शेयर्स होते हैं 400 रुपीज एग्जाम्पल वाले, तो ये हमने शेयर्स 40 शेयर्स किसको ऑफर किए हैं? पब्लिक. और अभी इसमें से 100 में से 40 हमने ऑफर किए हैं. तो जो नहीं ऑफर किए वो कितने शेयर्स हैं हमारे एग्जाम्पल वाले? 60 shares. So the balance part of authorized capital not offered to the public called as a unissued capital. तो आपको issued and unissued capital समझ में आया? हमारा जो डायग्राम है उसमें आपने देखा होगा कि आपका ऑथराइज कैपिटल पार्ट बड़ा है, उसमें से हमने कितने इशू किए हैं? वो पार्ट उससे कम है, यानी जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, जो उसका ब्रीच वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको आप क्या कहोगे? यू कैन कॉल इट एज योर अनइश्यूड कैपिटल. द कैपिटल मे बी इक्वल टू और लेस देन ऑथराइज कैपिटल. मोस्टली क्या होता है, जो हमारा इशूड कैपिटल है वो कोई भी कंपनी है आपकी, वो एट अ टाइम पूरा 1000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज नहीं इशू करेगी. वो क्या करेगी? जैसे जैसे उनका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, जैसे जैसे कंपनी का गुडविल, उनका रेपुटेशन मार्केट में बढ़ते जाता है, वैसे वैसे कंपनी क्या करती है? उसका कैपिटल इशू करती है. तो मोस्टली इट इज अ लेस देन योर ऑथराइज कैपिटल. तो यहाँ पे आप अभी आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल जो आपके एम लिमिटेड कंपनी का दिया है वो भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो यहाँ पे हमने ऑथराइज के लिए एग्जाम्पल में कितने शेयर्स लिए थे? 100 शेयर्स. उसमें से हमने कितने इशू किए हैं? 40. और जो लेफ्ट ओवर है, जो हमारे पेंडिंग है, बैलेंस रखे हैं, वो हमारे कितने शेयर्स हैं? हमारे 60. और यहाँ पे उसका फेस वैल्यू कितना होगा? सेम होगा, यानी हमारा फेस वैल्यू होगा 10 रुपीज. तो यहाँ पे सबको समझ में आया? अभी आपको जो पहले हार्ड वर्ड्स दिए हैं, तो फर्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके टेक्स्ट बुक में वो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग लिख लो. यस, और हार्ड वर्ड्स के मीनिंग लिखने के बाद ट्राई टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ये स्लाइड्स भी रिफर करना है और आपके टेक्स्ट बुक भी. तो उसके वजह से आपको क्या होगा? ऑथराइज जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे आपको इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब ये भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो यहाँ तक सबको समझ में आया है. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि शेयर्स के टाइप्स देखे, सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो इक्विटी शेयर्स जो हमारे होते हैं, ये हम लोग शेयर जनरल पब्लिक को इशू करते हैं. तो ये कैपिटल कैसे डिवाइड होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है. तो आई होप everyone understand this authorized capital or nominal or registered capital as well as issued and unissued capital. So I hope everyone understand this and thank you.